Hello, good morning to all. Today topic is chest injury. A chest injury is defined as it is the form of injury to the chest including the ribs, heart and lungs, great vessels, trachea and esophagus. Chest injury also known as the blunt trauma. That means physical injury, physically damage, ribs, heart and lungs and chest. Next, etiology. Etiology is there are two types. First type is the blunt injury causes. Second, penetrate injury causes. Blunt injury causes means the superficially damage, just like motor vehicle accident, pedestrian accident. Pedestrian accidents means road accident, traffic accident, fall, spot injury, assault with the blunt object, alteration, crush injury, explosion, that causes the chest injury. Next, penetrating injury causes. These enter the body, just like the knife, gun shoot, stick, arrow. Occupational injury cause the chest injury. Next, a type of chest injury. There are 5 types of chest injury: ribs fracture, hemothorax, flail chest, pulmonary contusion, cardiac tamponade. First of all, rib fracture. Most common chest injury may be interfere with the ventilation and may be lacerate the underlying lungs. Superficially lesion of the lungs. Hemothorax. Hemothorax, blood in the pleural space as a result of penetrating or blunt chest trauma. Accompanies a high percentage of the chest injury, can result in the hidden blood loss. Not so bleeding in the internal bleeding. Next, flail chest. Loss of stability of chest wall as result of multiple rib fractures or combined ribs and sternum fracture. Loss of stability in chest, combined ribs, sternum and multiple fracture of the ribs. When this occurs, one portion of the chest has lost its bony connection to the rest of the rib cage. Affected is the rib cage, the bony connection, and bone भी डैमेज हो जाता है इसमें. Next है during respiration the detachment part of the chest will be pulled in on inspiration and blow out on expiration. Paradoxical movement. These are end of inspiration and expiration. Next, normal mechanics of breathing are impaired to a degree that seriously jeopardizes ventilation, causing dyspnea and cyanosis. Pulmonary contusion. These are the bruise of the lung, parenchyma. Those result leakage of the blood and edema fluid into the alveolar interstitial space of the lungs. These are the things: blood capillaries and tissue cells are damaged. Bruise means laceration, superficially damaged. May be not fully developed for the 24 to 72 hours. Not so in the hour 24 to 72 hours. Next, cardiac tamponade. Compression of the heart as a result of accumulation of fluid within the pericardial space caused by the penetrating injuries, metastasis and other disorders. Caused by the penetrating means enter the body and injuries. Metastasis means the spreadable disorder. These are cardiac tamponade. Next है clinical manifestation. Respiratory
सिस्टम में क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं? डिस्निया हो गया, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कफ विथ एंड विदाउट हेमोप्टाइसिस, सियानोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ माउथ, फेस, नेल बेड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, tracheal deviation, audible air escaping from chest wound, decrease the breath sounds on side of injury, decrease oxygen saturation and rhoddy secretion. नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या शो होता है? साइन एंड सिम्टम्स, रैपिड थ्रेडी पल्स, ट्रैकीकार्डिया, डिक्रीज बीपी, नैरो पल्स प्रेशर मतलब डिफरेंस पल्स प्रेशर, एसिमेट्रिक बीपी वैल्यूज इन आर्म्स, बोथ आर्म्स इन डिफरेंट बीपी वैल्यूज, एसिमेट्रिक बीपी वैल्यूज इन आर्म्स, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, muffled heart sounds and murmur sounds, chest pain, crunching sound and synchronous with the heart sounds, abnormal sound in the listening, dysarrhythmias in different way of the heart rate. Next है surface finding. Bruising means laceration, abrasion means सुपरफिशियली डैमेज, ओपन चेस्ट वुंड, एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट, चेस्ट का मूवमेंट एसिमेट्रिकल हो जाएगा, अलग अलग वे में हो जाता है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा. नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक फाइंडिंग. डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन. Doing physical examination, the assess abdominal tenderness, chest bruising, chest swelling, decreased lung sound, wheezing, rapid pulse and rapid breathing, chest crepitations, cyanosis, dyspnea, auscultation, palpitation, percussion. These perform of the physical examination. नेक्स्ट करेंगे चेस्ट एक्सरे करते हैं. चेस्ट एक्सरे में एबनॉर्मलिटी शो नहीं होता, सीटी स्कैन एंड एमआरआई करते हैं एंड सीबीसी भी कर सकते हैं. सीबीसी में कंप्लीट ब्लड काउंट, इफ मे बी इन्फेक्शन, इंक्रीज द न्यूट्रोफिल्स, ईएसआर इंक्रीज एंड ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए एबीजी कर सकते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस. कल्चर कर सकते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ कल्चर. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट द गोल इज दैट रीस्टोर नॉर्मल कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन क्विकली एज द पॉसिबल. दीज आर द परफॉर्म द फर्स्टली रीस्टोर. ब्लीडिंग हुआ रहता है उसको रीस्टोर करते हैं. दिस इज द अकॉम्प्लिश्ड बाय परफॉर्मिंग इफेक्टिव रिसक्सिटेशन, उसको रिसक्सिटेट करते हैं. वाइल सिमुलटेनियसली असेसिंग द पेशेंट को असेस करते हैं. रिस्टोरिंग द चेस्ट वॉल इंटीग्रिटी, चेस्ट वॉल की इंटीग्रिटी को रिस्टोर करते हैं. री एक्सपेंडिंग द लंग्स को री एक्सपेंड करने की ट्राई करते हैं. असिस्ट विद द इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक टू रिलीव पेन, सो कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग में बी एकम्प्लिश्ड. इफ में भी इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉकेज है या उसमें कफ भरा है तो उसको डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करा के उसको क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं. इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक इन द इंजेक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक इनटू एरिया अराउंड द इंटरकोस्टल नर्व टू द रिलीफ पेन. इफ उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसको लोकल एनेस्थीसिया देके पेन से रिलीव करते हैं. फॉर मल्टीपल रिब फ्रैक्चर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में बी यूज. इफ मल्टीपल रिब फ्रैक्चर है तो उसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं. रिब फ्रैक्चर मीन्स गिव द एनाल्जेसिक यूजुअली नॉन ओपाइड. इफ में भी रिब फ्रैक्चर उसको हुआ है तो क्या देंगे, एनाल्जेसिक, डाइक्लोफेनिक दे सकते हैं, वोविरॉन,
असिस्टिंग इफेक्टिव कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, उसको बोलेंगे डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करो, डीप इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करने के लिए। एनकरेज द डीप ब्रीथिंग विथ स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन, गिव लोकल सपोर्ट इंजूर्ड एरिया बाय द स्प्लिंटिंग विद द हैंड। नेक्स्ट है हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स का ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? असिस्ट द थोरेंसेंटेसिस। थोरेंसेंटेसिस मीन्स उसका क्या करते हैं? टैपिंग करते हैं, पेरिकार्डियल टैप करते हैं और नीडल के थ्रू जो उसमें एक्स्ट्रा ब्लड फ्लूइड कलेक्ट हुए रहते हैं उसको रिमूव करते हैं। इफ़ बीइंग डन बिफोर द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, उसमें क्या करते हैं? चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। असिस्ट द फिट द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन एंड सेटअप द ड्रेनेज सिस्टम एंड कंप्लीट द कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ द ब्लड एंड एयर। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन के थ्रू क्या करते हैं? जितना ब्लड और एयर एंड फ्लूइड कलेक्ट हुए रहते हैं उसको रिमूव करते हैं। अस्कल्टेट लंग्स एंड मॉनिटर फॉर द रिलीफ फॉर द डिस्निया। अस्कल्टेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि डिस्निया से उसको रिलीफ मिला कि नहीं। मॉनिटर द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन ड्रेनेज, मॉनिटर करना है कितना ब्लड लॉस हुआ ड्रेनेज के समय। रिप्लेस द वॉल्यूम विद द आईवी फ्लूइड्स और ब्लड प्रोडक्ट्स, एंड जितना लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करना है किसके थ्रू? आईवी फ्लूइड्स के थ्रू, ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट है फ्लैल चेस्ट। फ्लैल चेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? स्टेबलाइज द फ्लैल पोर्शन ऑन द चेस्ट, जो पोर्शन में फ्लैल इंजरी हुआ है उसको क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। अप्लाई द प्रेशर ड्रेसिंग, और उसमें ड्रेसिंग के समय प्रेशर को अप्लाई करते हैं। पेशेंट ऑन इंजरी साइड प्लेस द 10 LV sandbag outside of the flare. Thoracic epidural analgesic may be used for some patient to relieve pain and improve ventilation. Next है pulmonary contusion. Employ mechanical ventilation to keep lungs inflated. Administer diuretics, reduce edema. डायरेटिक्स क्यों एडमिनिस्टर करते हैं? एडिमा को रिड्यूस करने के लिए। करेक्ट द मेटाबॉलिक एसिड विद द IV सोडियम बाइकार्बोनेट्स। यूज द पैप मॉनिटरिंग, मॉनिटर फॉर द डेवलप ऑफ निमोनिया, मतलब कितना निमोनिया डेवलप हुआ उसको मॉनिटर करना है। इफ़ रेस्पिरेटरी फेलियर प्रेजेंट, उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है तो प्रिपेयर फॉर द इमीडिएट इंट्यूबेशन के लिए उसको प्रिपेयर करना है पेशेंट को। मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए ट्रीट करना है पेशेंट को पल्मोनरी कंट्यूशन में। सर्व्स द स्टेबलाइज द थोरेसिक केस, हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, इम्प्रूव द एल्वियोलर वेंटिलेशन, द रीस्टोर द थोरेसिक केज स्टेबिलिटी। इफ थोरेसिक केस का स्टेबिलिटी एबनॉर्मल हो गया है तो उसको रीस्टोर करते हैं किसके थ्रू? वेंटिलेशन के थ्रू। प्रिपेयर फॉर द ऑपरेटिव स्टेबलाइजेशन ऑफ चेस्ट वॉल द सेलेक्ट पेशेंट, पेशेंट को प्रिपेयर करना है। कार्डियक टेम्पोनेंट में क्या करते हैं? उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? असिस्ट द फिर द पेरिकार्डियोसेंटेसिस टू प्रोवाइड द इमरजेंसी रिलीफ एंड इम्प्रूव द हीमोडायनेमिक फंक्शन अंटिल सर्जरी कैन बी अंडरटेकन। थोरेंसेंटेसिस मीन्स ना लंग चेस्ट पर टैपिंग करते हैं, प्लूरल स्पेस में टैपिंग करते हैं, और कार्डियोसेंटेसिस में पेरिकार्डियल का टैप करते हैं और नीडल के थ्रू एस्पिरेट करते हैं। हीमोडायनेमिक फंक्शन अंटिल द सर्जरी अंडरटेकन, इसके सर्जरी के थ्रू इसको प्रोसीजर करते हैं। प्रिपेयर फॉर द इमरजेंसी थोरेक्टोमी टू द कंट्रोल ब्लीडिंग एंड रिपेयर कार्डियक इंजरी, कार्डियक इंजरी को रिपेयर करने के लिए थोरेक्टोमी करते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस, पेशेंट को एजुकेशन देना है और हेल्थ को मेंटेनेंस करके कैसे रखना है। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट इन द स्प्लिंटिंग टेक्निक्स, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है। मेक श्योर द पेशेंट इज अवेयर इम्पोर्टेंस ऑटोमोबाइल सीट्स बेल्ट यूज टू रिड्यूस सीरियस चेस्ट इंजरी कॉज बाय द ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, मतलब बाइक चलाते समय मोबाइल यूज़ नहीं करना है।
इंस्ट्रक्ट करना है उसको कि गाड़ी चलाते समय बेल्ट सीट बाइंड अप करना है। टीच द पेशेंट टू रिपोर्ट साइन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है, एटलेक्टिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकते हैं। थैंक यू।